Today we are starting chapter number 16, green chemistry and nanochemistry. These chapter having 3 mass with option 4 mass. First, green chemistry. Green chemistry is design of chemical product and process that reduce or eliminate the use or generation of hazardous substance. Green chemistry apply across the life cycle of a chemical product, including its design, manufacture and use, ultimate disposal. Then important green chemical is either degrade to incautious product or recover for future use. Plant and animals suffer less harm from toxic chemical in the environment. Lower potential for global warming, ozone depletion and smoke formation. Less chemical disturb of ecosystem. Green chemistry can save uh, companies money by reducing the need for costly chemical reagent and solvent, lowering insurance, the legal cost and reducing waste disposal cost and saving the energy. The chemistry play an important role to improve quality of our life. To increase human population and the industrial revolution, energy crisis and the environmental pollution are highlighted major global problem in the 21st century. To minimize a problem of energy crisis and the pollution, we have used green chemistry. Green chemistry is an approach to a chemistry that aims to maximize efficiency and minimize hazards effect on human health and environment. The concept of green chemistry was coined by Paul T. Anatus. Definition of green chemistry. Green chemistry is the use chemistry for pollution prevention by environmental conscious design of chemical product and process that reduce or eliminate the use generation of hazardous substance. तो ये डेफिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या लिखना है, पोल्यूशन प्रिवेंशन. देन डेफिनेशन के बाद आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. means green chemistry also called sustainable chemistry is an area of chemistry and chemical engineering focus on the design of the product and the process that minimize or eliminate the use and the generation of hazardous substance. Sustainable development. Green chemistry play an important role sustainable development. We can achieve sustainable development by the adapting the 12 principles of green chemistry. Sustainable development is development that meets the need of the present or without compromising the ability of future generations to meet their own need. The sustainable development has been continued to evolve as that protecting the world resource. ये हम क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज़ करते हैं कि आगे फ्यूचर में हमें कुछ खतरा महसूस ना हो, मीन्स हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन ज़्यादा ना हो. तो फ्यूचर में हम फ्यूचर को सेव करने के लिए
हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज़ करते हैं। टू रिड्यूस ऑफ द एनर्जी क्राइसिस एंड पोल्यूशन, टू सेव द नेचुरल रिसोर्स, तो वी आर यूज 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री which is given by Paul Anatus. तो first principle, prevention of waste or byproduct. To give priority for prevention of waste rather than killing up and treating the waste after it has been created. Illustration to develop zero waste technology. Zero waste technology means ZWT. Z मतलब जीरो, W मतलब वेस्ट, T मतलब टेक्नोलॉजी। तो ZWT in a chemical synthesis. Waste product should be zero or minimum. It also aims to use waste product of the one system as the raw material for other system. Just example, first example, bottom husk of thermal power station can be used as a raw material for cement and brick industries में use कर सकते हैं। Influent coming out from killing of the machine part may be used coolant the water in thermal power station. Means इस प्रिंसिपल का मतलब है कि हम जो भी कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट या तो 100% मिलना चाहिए या तो थोड़ा सा कम, ज़्यादा कम नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वेस्ट उससे हमें हार्मफुल भी हो सकता है। या तो हमें ऐसा रिएक्शन करना चाहिए कि जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो किसी और रिएक्शन में भी यूज़ हो। तो मोस्टली हमें ऐसा रिएक्शन यूज़ करना चाहिए या तो 100% हमें प्रोडक्ट मिले, या हमें वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है तो वो किसी और चीज़ में यूज़ होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाई प्रोडक्ट मीन्स हम उस वेस्ट प्रोडक्ट को रोक सकते हैं। सेकेंड, एंड एटम इकोनॉमी. First, atom economy is the measure of the amount of atoms from the starting material that are present in the useful product at the end of chemical process. Good atom economy means most of the atoms of the reactant are incorporated in the desired product, and only small amount of unwanted by the product are formed, and hence larger problem of waste disposal. So they are given the example कि the concept of atom economy gives the measure of the unwanted product produced in a particular reaction. So first formula is the given. How can determine the percent of atom economy? तो हम कैसे निकालेंगे? परसेंट ऑफ एटम इकोनॉमी इज इक्वल टू फार्मूला वेट ऑफ द डिजायर प्रोडक्ट, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, एंड डिवाइड बाई सम ऑफ फार्मूला वेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट यूज इन द रिएक्शन, जो हम रिएक्शन में रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं। Suppose given the example कि to prepare butane 1-ol to 1-bromobutane, butane 1-ol से क्या बनाना है? 1-bromobutane. तो using of butane 1-ol CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो ये क्या हो गया? butane 1-ol. These are react with the sodium bromide NaBr प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? 1-bromobutane मीन्स CH3 CH2 CH2 CH2Br 1-bromobutane प्लस बाय प्रोडक्ट क्या मिला? NaHH
NaHSO4 मीन सोडियम बाइसल्फेट। तो NaHSO4 में सोडियम बाइसल्फेट बाई प्रोडक्ट मिला एंड प्लस H2O। तो परसेंट ऑफ एटम इकोनॉमी इज इक्वल टू टोटल रिएक्टर में कितने एटम है, जैसे 4 कार्बन प्लस हाइड्रोजन 9 हाइड्रोजन प्लस Br कितने हैं 1, तो 1 Br, तो 4 कार्बन प्लस 9 हाइड्रोजन प्लस Br। प्रोडक्ट हमें ब्रोमो ब्यूटेन बनाना था तो हम उसको ही टोटल करेंगे। तो टोटल कार्बन कर दिया 4 कार्बन प्लस 9 हाइड्रोजन प्लस 1 Br एटम। डिवाइड बाई फार्मूला क्या था, सम ऑफ फार्मूला वेट ऑफ ऑल द रिएक्टर यूज द रिएक्शन। तो सम ऑफ द रिएक्टेंट का कैसे करेंगे, मास ऑफ द कार्बन। रिएक्टेंट में ब्यूटेन नॉर्मल में कार्बन कितना है 4C, टोटल हाइड्रोजन कितना है 12 प्लस 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना हुआ, अल्कोहल का 1 ऑक्सीजन और H2SO4 का 4 ऑक्सीजन, टोटल 5 ऑक्सीजन। Br कितना है 1 Br। सोडियम कितना है 1 Na और सल्फर कितना है 1 सल्फर एटम। तो टोटल हमें मिला 4 कार्बन प्लस 12 हाइड्रोजन प्लस 5 ऑक्सीजन प्लस 1 Br प्लस 1 सोडियम प्लस 1 सल्फर एटम एंड दिस इज मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकालना है। तो फिर हमें टोटल ऑफ प्रोडक्ट का जब हमने टोटल किया तो मिला हमें 137 यूनिट। कितना 137 यूनिट डिवाइड बाई टोटल नीचे हमने रिएक्टेंट का किया तो 275 यूनिट और मल्टीप्लाई 100। तो परसेंट ऑफ एटम इकोनॉमी कितना मिला 49.81%। मीन्स हमें खाली 50% प्रोडक्ट मिला और 50% जो हमारे प्रोडक्ट जो बाय प्रोडक्ट बना दिस इज वेस्ट प्रोडक्ट। तो हमें एटम इकोनॉमी में ये बता रहा है कि हम ऐसा रिएक्शन करें कि हमें प्रोडक्ट ज़्यादा मिले, मैंने परसेंट ऑफ एटम इकोनॉमी ज़्यादा मिले, ऐसा नहीं ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट मिले। तो वो हमारे वो ऐसा रिएक्शन हम यूज़ नहीं करेंगे। हम हमें हमेशा ऐसा रिएक्शन यूज़ करेंगे कि एटम इकोनॉमी का परसेंटेज हमें ज़्यादा मिले और जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट जो भी बन रहा है, जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है, वो कम परसेंट का मिले। तो उसको बोलते हैं एटम इकोनॉमी। थर्ड प्रिंसिपल, लेस hazardous chemical synthesis. Design the chemical reaction and synthesize route should be safe as a possible so that we can avoid formation of hazardous waste from chemical process. So earlier DDT means diphenyl trichloroethane। DDT का पूरा नाम क्या है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन was used insecticide and which was effective in controlling disease like typhoid and malaria carrying the mosquitoes. It was realized that DDT is harmful to living thing. तो nowadays बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसके बदले में उन्होंने क्या यूज़ किया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। बी मतलब बेंजीन, HC मतलब हेक्साक्लोराइड इज यूज इंसेक्टिसाइड। वन ऑफ द गामा आइसोमर्स of BHC means benzene hexachloride is called gamma hexane or lignane. This is the first principle. Means हम हमेशा ऐसा ही केमिकल यूज करेंगे जो हमारे हार्मफुल ना हो। और DDT से क्या हुआ, शरीर में हार्मफुल इफेक्ट होने लगा, तो उन्होंने देखा इससे हार्मफुल इफेक्ट है तो हम क्यों नहीं इसके बदले दूसरा केमिकल यूज करें। तो उन्होंने क्या यूज़ करने लगे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये जो कि शरीर के लिए हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसके कारण और हमारे
ह्यूमन में अगर हम स्ट्रॉन्ग केमिकल का यूज़ करेंगे तो हमारे ही बॉडी में रिएक्शन होगा और हमें और बीमारियां होने लगेगी। तो इसके कारण उन्होंने क्या किया, BHC यूज़ करने लगे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। फोर्थ प्रिंसिपल, डिजाइनिंग द सेफ केमिकल्स, मीन्स हमें सेफ केमिकल यूज़ करना है टू डेवलप प्रोडक्ट डेट आर लेस टॉक्सिक और विच रिक्वायर लेस टॉक्सिक रॉ मटेरियल। मीन्स ये भी प्रिंसिपल सेम थर्ड जैसा ही है कि इसने क्या बताया कि केमिकल इंडस्ट्री वर्कर्स आर एक्सपोर्ट टॉक्सिक इन्वायरमेंट। मीन्स हमारे जो वर्कर है वो कंपनी में काम करते हैं, तो अगर हमने खराब केमिकल यूज़ करेंगे तो उनको क्या होगा, टॉक्सिक इन्वायरमेंट मिलेगा। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द वर्कर्स आर फ्रॉम एक्सपोजर टू टॉक्सिसिटी वी शुड थिंक डिजाइनिंग द सेफ केमिकल्स। जैसे एग्जांपल लिया, एडिपिक एसिड इज वाइडली यूज इन द पॉलीमर इंडस्ट्रीज। एडिपिक एसिड देखा हमने पॉलीमर में पढ़ा। तो बेंजीन इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर्म फॉर सिंथेसाइज ऑफ एडिपिक एसिड, बट बेंजीन इज द कार्सिनोजेनिक कंपाउंड। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, बेंजीन इज द कार्सिनोजेनिक कंपाउंड। तो एंड बेंजीन बिगिन वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये वोलाटाइल भी है जो कि पोल्यूशन में एयर में जल्दी से फैल जाएगा। तो उन्होंने क्या ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ किया कि दिस फोर्स्ड कि एडिपिक एसिड इज एंजाइमेटिकली सिंथेसाइज फ्रॉम ग्लूकोज। उन्होंने क्या किया, किससे सिंथेसाइज करने लगे, फ्रॉम ग्लूकोज। बेंजीन के बदले किससे सिंथेसाइज करने लगे, फ्रॉम ग्लूकोज। तो ये हो गया फोर्थ प्रिंसिपल। मीन्स इसने बोला ऐसे केमिकल यूज़ करो जो कि हमारे बॉडी में इफेक्ट ना हो, हम जो सेफ रह सके। नहीं तो इतने वर्कर कंपनी में काम करने वाले हैं, वो केमिकल यूज़ करेंगे तो सब बीमार होके निकलेंगे बाहर। तो उन्होंने ऐसा बोला कि इसके बदले हम कौन सा केमिकल यूज़ कर सकते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहे। तो उसको बोलते हैं डिजाइनिंग सेफ फॉर केमिकल। फिफ्थ प्रिंसिपल, use safer solvent and auxiliaries. Choose the safer solvent available for any given step of reaction. Minimize the total amount of the solvent and auxiliary substance used, as this make up a large percentage of the total waste created. Means the main aim behind this principle is to use green solvent. Example, water. Water is a supercritical CO2 in place of volatile halogenated organic solvent. For example, methylene dichloride, chloroform for chemical synthesis, and other proposed solvent as a chemical that dissolve solute and form solution. Facilities many reaction. Water in the shape begin solvent, while the dichloromethane is the hazardous. Use the toxic solvent affect millions workers every year and has a implication of consume and the environment as well. Many solvents are used high volume, many are volatile organic compound. Their use create large amount of waste air pollution. Other health impact. Find a safe, more efficient alternative or removing the solvent altogether. Each one of the best way improve the process और प्रोडक्ट। मतलब इसमें क्या बोला है कि हम जितना हो सके सेल्फ सॉल्वेंट यूज़ करना चाहिए, हम जो भी रिएक्शन कर रहे हैं। तो जितने सारे वर्कर्स हैं उनको अलग से इफेक्ट होगा। तो जितना हो सके हम ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करें जो कि बॉडी में इफेक्ट ना हो। जैसे वाटर भी यूज़ कर सकते हैं हम,
और मेनी सॉल्वेंट कैसे होते हैं? अगर हमने हाई वॉल्यूम में यूज़ किया तो ये दे आर वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को ख़राब करते हैं। तो अमाउंट ऑफ वेस्ट और एयर पोल्यूशन एंड अदर हेल्थ इम्पैक्ट, तो वर्कर्स की हेल्थ में क्या होगा, उसमें इफेक्ट पड़ेगा, तो वर्कर्स क्या होंगे, बीमार होंगे। इसी कारण हम क्या करते हैं कि जितना हो सके सेफ सॉल्वेंट यूज़ करना चाहिए, हो सके तो ज़्यादा वोलाटाइल सॉल्वेंट नहीं यूज़ करना चाहिए। अभी 6 प्रिंसिपल की डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी मीन्स हम कम से कम एनर्जी का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो केमिकल सिंथेसाइज शुड बी डिजाइन टू मिनिमाइज टू यूज ऑफ एनर्जी। इट इज बेटर टू मिनिमाइज द एनर्जी बाय कैरिंग आउट रिएक्शन at a room temperature and pressure. This can be achieved by use of the proper catalyst and use of microorganism for organic synthesis. Use a renewable material extra. The biocatalyst can work up at the ambient condition. Similarly, chemical synthesis reflexing condition require less energy, improving the technology of heating the system. यूज़ माइक्रोवेव हीटिंग एक्स्ट्रा। और हमें इसमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर कैटलिस्ट यूज़ करना चाहिए। प्रॉपर कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो यूज़ करना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द ऑर्गेनिक सिंथेसाइज करने के लिए। और जितना हो सके रिन्यूएबल मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए, जितना हो सके एनर्जी कम यूज़ हो। तो इसका मीनिंग क्या है, केमिकल सिंथेसाइज शुड बी डिजाइन टू मिनिमाइज यूज ऑफ एनर्जी। 7 प्रिंसिपल यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक। फीड स्टॉक मतलब पेट्रोल ऑयल। तो द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस प्रिंसिपल is large towards the petrochemicals and use chemical which are made from renewable source means plant based के ऊपर rather than other example curd oil. The overall explosion of non-renewable feed stock will deplete the resource and future generation will be deprived. Moreover, use of this non-renewable resource puts burden on the environment. On the other hand, use renewable resource, for example agriculture or biological product, ensure the sharing of resource by the future generation. This practice generally does not put the much burden on the environment. The product and the waste generally biodegradable. मीन्स हम आज यूज़ कर रहे हैं ऑयल पेट्रोल, जितना हम बन रहा नहीं है उतना उससे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसी कारण क्या आ सकता है, फ्यूचर में बर्डन आ सकता है, इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। और जब भी हम कुछ भी बना रहे हैं तो हमारा होना चाहिए और बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। या तो मैंने पहले ही प्रिंसिपल में बताया था कि वेस्ट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो दूसरे में यूज़ आ सके। ये नहीं कि वो वेस्ट प्रोडक्ट इन्वायरमेंटल में पोल्यूशन प्रोड्यूस करे। तो हमेशा याद रखना कि वेस्ट है जनरली बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट 8 प्रिंसिपल reduce derivatives में minimize of the step. A commonly used technique in organic synthesis is used protecting or blocking group. Unnecessary derivative, for example removal of use protecting groups, should be minimized or avoid if possible, because such steps require additional reagent and can generate waste. Example, organic synthesis, we need the very often the protection of some functional group. Finally, we again need the deprotection, means it is a
Explain in the following example of synthesis of meta-hydroxybenzoic acid from meta-hydroxybenzylaldehyde. So in some case atom economy is also less. Green chemistry principle aims develop methodology where unnecessary steps should be avoided. If the practical biocatalytic reaction very often need no protection of selective group, means जस्ट एग्जाम्पल सी द हमें क्या बनाना है, हम मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनाना है और किससे बनाना है, मेटा हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड. मेटा हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड मीन बेंज एल्डिहाइड ग्रुप और मेटा पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप, और हमें बनाना है मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मीन मेटा पोजीशन में OH ग्रुप और एसिड बेंजीन COOH. तो हम लोग मेटा हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड से मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनाएंगे तो हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करेंगे. वहाँ का ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो मेटा पोजीशन में OH ग्रुप है, सी मेटा पोजीशन में OH ग्रुप है, इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि C6H5CH2Cl का कंपाउंड यूज़ किया. मीन्स किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, OH ग्रुप करने, OH को ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो ये क्या हो गया कि जब मेटा पोजीशन में H रिप्लेस होके CH2CCH5 ग्रुप लग गया और HCl रिप्लेस हो गया, फिर हम उसको ऑक्सीडेशन करेंगे. तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो खाली एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो ही ऑक्सीडेशन होगा, COOH, और मेटा पोजीशन में जो ग्रुप है वो CH2C6H5 वो वैसा का वैसा ही होगा. तो OH को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये स्टेप निकाला उन्होंने. तो और उसके बाद में लास्ट स्टेप में क्या हुआ कि डी प्रोटेक्शन करना है OH को, मतलब वापस OH ग्रुप लगाना. तो OH ग्रुप को वापस हम लोग लगा देंगे OH ग्रुप मीन H, और बन जाएगा मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. तो ये जो सिंगल स्टेप को रिएक्शन को हमने कितने स्टेप में किया, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप. क्यों, OH को प्रोटेक्ट करने के लिए, नहीं तो वो भी ऑक्सीडेशन होता और दूसरा कोई कंपाउंड बनता. मगर हमें क्या चाहिए था, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसलिए हमने स्टेप बाय स्टेप यूज़ किया. 3 स्टेप इसमें यूज़ हुए मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनाने के लिए. तो ये मीन्स क्या है, रेड्यूस डेरिवेटिव्स और जितना हो सके मिनिमाइज स्टेप. 9 प्रिंसिपल, यूज ऑफ द कैटलिस्ट. Use the catalyst in the chemical reaction, speed up its rate, and catalyst help to increase selective, minimize waste and reduce reaction time and energy demand. हम हमेशा कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे जो कि रिएक्शन के लिए ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट नहीं है. जितना हो सके अच्छा कैटलिस्ट यूज करेंगे तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा. जितना हो सके कम टाइम में रिएक्शन प्रोडक्ट देगा. तो ये इसका मीनिंग यही है, कैटलिस्ट हेल्प टू इंक्रीज सेलेक्टिविटी, मिनिमाइज वेस्ट एंड रिड्यूस द रिएक्शन टाइम एंड एनर्जी डिमांड. कुछ रिएक्शन दिए, जैसे फर्स्ट रिएक्शन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल. हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में हार्डनिंग स्टेप है. तो हार्डनिंग स्टेप में क्या हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में हम हमेशा निकल का यूज करते हैं. सेकेंड, हार्बर्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, तो हम कौन सा कैटलिस्ट करेंगे, आयन. थर्ड स्टेप, मैन्युफैक्चर ऑफ HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन इथिलीन पॉलीमर, जिगलर नाटा, ये हमने 15 चैप्टर में पढ़ा था. फोर्थ, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय द कॉन्टैक्ट द प्रोसेस,
vanadium pentaoxide, तो means B2O5. Fifth, Fischer Tropsch process synthesize the gasoline, means कोबाल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आयरन भी यूज़ कर सकते हैं और निकल भी, रिएक्शन पर डिपेंड है। तो हम ये सब ये कैटल यूज करते हैं। फर्स्ट, हाइड्रोजन ऑफ ऑयल में निकल, हापर्स प्रोसेस मैन्युफैक्चर अमोनिया में आयन, मैन्युफैक्चर ऑफ HDPE पॉलीमर में जिगलर नाटा, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, एंड फिफ्थ, फिशर ट्रॉप्श प्रोसेस कोबाल्ट और आयरन और निकल। हम ये सब कैटलिस्ट यूज करते हैं। 10 principle design for degradation. Design the chemical that degrade and that can be discarded easily. Ensure that both the chemical and their degradation product are not toxic, bioaccumulative or environmentally persistent. The aim behind this principle is that the waste product should be degraded automatically to clean the environment. The biodegradable polymer are and the pesticides are always preferred. To make separation easier for the consumer, an international plastic recycle mark is printed on large themes. ये देखो, ये क्या है, रिसाइकल मार्क्स प्रिंटेड, मीन हमेशा जो प्लास्टिक, बड़े बड़े प्लास्टिक कंटेनर में ये मार्क्स रहते ही है। तो इस डिजाइन डिग्रेडेशन मीन हम हमेशा ऐसा प्लास्टिक यूज़ करेंगे जो कि डिग्रेडेबल हो, मतलब बायोडिग्रेडेबल हो और अपने आप ही डिकम्पोज हो जाए, जो कि इन्वायरमेंटल में पोल्यूशन प्रोड्यूस ना हो। तो उसको बोलते हैं डिजाइन ऑफ डिग्रेडेशन। तो हमने हाउस होल्ड प्लास्टिक ये यूज़ करते हैं। फर्स्ट, PETE और PET मीन्स पॉलीइथिलीन टेरिफेथलेट। इसको क्या बोलेंगे, पॉलीइथिलीन टेरिफेथलेट। देखो यहाँ तो पॉलीइथिलीन टेरिफेथलेट यूज माइक्रोवेबल फूड ट्रे and salad dressing, soft drink, water and beers bottle. Status: hard to killing, absorb the bacteria and flavor, avoid the reusing. Recycle to make carpet, furniture, new container and polar flips. Next, HDPE means high density polyethylene. Use household cleaner and shampoo bottles. Status: transmits no unknown chemical into food. And recycle detergent bottle, fencing, floor tiles and pen. मतलब इसका हमें पेन बनाने में यूज़ होता है। थर्ड, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये हमने पॉलीमर में पढ़ा है। यूज कुकिंग ऑयल बोटल्स, क्लियर फूड पैकिंग, माउथ वॉश बोटल। स्टेटस: इज बिलीव टू कंटेन थैलेट्स दैट इंटरफियर विद द हार्मोन डेवलपमेंट। उसको अवॉइड करने का, ये अपने हार्मोन में इंटरफियर करता है। तो रिसाइकल cables, mud flaps and planing roadway. And fourth, LDPE. LDPE means low density polyethylene. Use bread and the shopping bags, carpet, clothing, furniture. Status: transmit no unknown chemical into food. Recycle envelopes, floor tiles and lumber and trash can cleaner. Fifth one, polypropylene. Use ketchup bottles
and medicine, syrup bottle, and drinking straws. Status transmit no unknown chemical into food. Recycle battery cables and the ice scraper Rex. And 6, polystyrene. Use disposal cups and the plates, egg, cut, egg cartons, and take out the container. Status each value to leach strain a possible human carcinogenic into food. तो इसको क्या करेंगे, अवॉइड करते हैं क्योंकि ये क्या है, कार्कोजेनिक है. तो रिसाइकल में फोम पैकेजिंग, इंसुलेशन, लाइट स्विच, प्लेट्स एंड रूलर्स. 7, miscellaneous means 3 and 5 gallon water jugs and nylon, some food container. Status contains the bisphenol A, which has been linked to heart disease. हार्ट डिसीज है तो ये, एंड ओबेसिटी, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग अवॉइड करेंगे. रिसाइकल कस्टमर मेड द प्रोडक्ट एंड द, तो ये लास्ट हो गया आपके 7 जो हमने यूज़ करते हैं तो उसके बारे में बताया. तो ये हो गया हमारा डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन. तो अभी हम 11 प्रिंसिपल में आएंगे. 11 principle, real time analysis pollution prevention. Analytical method need to further development to allow for real time in a process monitoring and control prior to formation of hazardous substance. Analytical methodology should be developed or modified so that continuous monitoring of the manufacturing and processing units is possible. This is the very much important for chemical industry and nuclear reactor. Means हम हमेशा ऐसे यूज़ करेंगे जो कि बॉडी में इफ़ेक्ट ना हो. ये कहाँ यूज़ होता है, हम लोग जो न्यूक्लियर रिएक्शन में हम मोस्टली यूज़ करते हैं. तो जो रे आती है वो बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है. तो हम हमेशा एनालिटिकल मेथोलॉजिकल का यूज़ करेंगे जो कि वो मतलब हम अब जो रे से बच सके. मीन्स हमारी बॉडी में रे इफेक्ट ना हो पाए. ये हो गया रियल टाइम एनालिसिस पोल्यूशन प्रिवेंशन. एंड 12 प्रिंसिपल्स लास्ट, safer chemistry for assistant prevention. We need to develop chemical process that are safer and minimize risks of the accident. So the substance to be used in a chemical reaction should be selected in such a way that they can be minimize the occurrence of chemical accident, explosion and fire and the emission. For example, chemical process works with the gaseous substance. Then the possibility of accident including explosion is a relative higher compared to the system working with the non-volatile liquid and solid substance. ये जो हम जो यूज़ करते हैं सेफ केमिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट, मीन्स हम हमेशा ऐसा ही कैटलिस्ट यूज़ करें कि ऐसे चीज़ यूज़ करें रिएक्शन में कि हमें प्रोडक्ट तो अच्छे से मिल जाए, बेस्ट प्रोडक्ट नहीं बने. और वेस्ट प्रोडक्ट जो बनेगा तो अपने मतलब बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, मतलब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रोड्यूस होगा. तो हमेशा हम अच्छा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे और जिससे जल्दी से रिएक्शन हो जाए और वेस्ट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ना प्रोड्यूस हो और गैसियस मतलब गैसियस सब्सटेंस ना बने जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा हो. क्योंकि ये मोस्टली कंपनियों में जो वर्कर्स काम करते हैं तो उसके लिए ये प्रिंसिपल यूज़ होता है. जितना हो सके हम नॉन वोलेटाइल लिक्विड यूज़ करेंगे
एंड द सॉलिड सब्सटेंस। तो ये लास्ट प्रिंसिपल हो गया सेफ केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। तो आज हमने फर्स्ट प्रिंसिपल देखा कि प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाई प्रोडक्ट। सेकेंड प्रिंसिपल एटम इकोनॉमी। थर्ड प्रिंसिपल लेस हैजार्ड्स केमिकल सिंथेसिस। फोर्थ डिजाइन सेफर केमिकल्स। एंड फिफ्थ यूज सेफ solvent and auxiliaries. 6. Design for energy efficiency. 7. Use for renewable feedstocks. 8. Reduce derivatives. 9. Use of catalysts. 10. Design for degradation. 11. Real-time analysis pollution prevention. And 12. Safer chemistry for accident prevention. तो ये सब 12 प्रिंसिपल जो हमने देखा इसका मीनिंग यही है कि जितना हो हम जब भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट कम बने, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बने तो वो चीज़ दूसरे रिएक्शन में यूज़ हो रही है तो अच्छा है, नहीं तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रोड्यूस होगा। और जितना हो कि हमारे ह्यूमन हेल्थ में इफ़ेक्ट ना हो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रोड्यूस ना हो। 12 प्रिंसिपल है बट इस 12 प्रिंसिपल का एम एक ही है कि पोल्यूशन कंट्रोल करना। तो ये 12 प्रिंसिपल हम ग्रीन केमिस्ट्री में आज की है। तो इस 12 प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे ग्रीन केमिस्ट्री में, तो इससे क्या होगा पोल्यूशन कंट्रोल।